students. Today we'll discuss about the 1971 election. Before this, we'll have a quick recapitulation of what we studied earlier. In the earlier class, we had discussed about the 1967 election. In that, Congress was not working with a very good majority. It got the least vote for the first time after independence. But Congress again able to restore its past position in the 1971 election. So बीच में एक फेज आया था between 67 to 71 when Congress do not have much majority, do not have good majority. It somehow able to rule over the country, but after 1971 Congress again able to achieve victory with a good majority. So we call this phase as the restoration of Congress, क्योंकि कांग्रेस ने अगेन अपनी जो पास्ट की पोजीशन है उसको रिस्टोर किया. सो दिस इज़ द रीज़न दैट 1971 इलेक्शन के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस एबल टू गेन द रिस्टोरेशन. सो इन द 1971 इलेक्शन उस समय जो बैकग्राउंड था दैट Indira Gandhi was facing the challenge of the ongoing poverty and unemployment. You all know that 60s decade was quite challenging. 60s का जो decade था वो बहुत challenging था, and this was the reason that Indira Gandhi faced lot of problems. She has to face the dissatisfaction of people. They all were protesting. They all were chanting the slogans ऑफ इंदिरा हटाओ. सो उस समय अपोजिशन पार्टी ने भी लोगों के माइंड में ये चीज़ डाल दी कि इंदिरा गांधी इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर देम. बट ऑल्दो अपोजिशन पार्टी गेव द स्लोगन ऑफ इंदिरा हटाओ, बट इसका बेनिफिट इंदिरा गांधी ने लिया. उन्होंने लोगों के लिए जो 67 इलेक्शन में जो 10 पॉइंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, एंड इन रिटर्न शी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ. सो रिमूव पॉवर्टी का जो उन्होंने स्लोगन दिया दैट अफेक्टेड पीपल, और लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए इस चीज़ से. लोगों को लगा कि यस, इंदिरा गांधी इज़ फोकसिंग ऑन द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो 67 में उन्होंने जो वर्कआउट किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग 10 पॉइंट प्रोग्राम, बाय फोकसिंग ऑन द सोशलिस्ट पॉलिसीज, एंड she also gave the slogan of Garibi Hatao. So this influenced people a lot. And finally in the 71 election, Indira Gandhi got the victory. And although ऐसा लग रहा था कि maybe Indira Gandhi, because of the dissatisfaction among the people, because of the poverty and unemployment, तो लोगों को लग रहा था कि शायद इंदिरा गांधी को नहीं मिलेगा मेजॉरिटी. लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया, उन्हें इम्प्रेस किया बाय हर pro poor programs. Now, what kind of challenge Indira Gandhi faced from the opposition? So here students, you can see the first point related to Grand Alliance. So जैसे 67 इलेक्शन में SVD कोलिएशन बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ राम मनोहर लोहिया, दिस टाइम all the non-Congress political party except the Communist Party, कम्युनिस्ट अप्रोच के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको छोड़ करके जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस जो पार्टीज इंडिया में थी उस समय, दे ऑल फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस कॉल्ड द ग्रैंड अलायंस. सो ये ग्रैंड अलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच अलायंस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन. सो ग्रैंड अलायंस, तो उसमें ऑप्शन में SVD अलायंस भी आता है, पर SVD आपको ध्यान रखना इट्स इन 67 and Grand Alliance is in 71. So Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program, Indira Hatao. In contrast, she put forth a positive program, Garibi Hatao. So जो नेगेटिव कैंपेनिंग थी अपोजिशन की तरफ से, ग्रैंड अलायंस की तरफ से कि इंदिरा हटाओ का उन्होंने स्लोगन दिया, तो इंदिरा गांधी ने लोगों को कहा कि व्हाट दे आर डूइंग, कि कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर डूइंग द नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर मी. So Indira Gandhi gave कि I have a positive program. I want to remove poverty from India. I had done it before. In 67 से उन्होंने ये launch किया था और मैं आगे भी करूँगी. She promised the people, and this is how she able to convince the Indian citizens.
and the slogan and the programs that followed it were part of the Indira Gandhi's strategy of building an independent nationwide political base. So through all this thing, she able to inspire people. Then what is the outcome? Finally, the results of the 1977 Lok Sabha election were dramatic as the Congress R and CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first four general election. So students, again a one marker question, that in which election Congress had won the highest percentage of seats and vote for the first time. So it was 1971 इलेक्शन. तो इवन नेहरू टाइम्स में भी कांग्रेस को इतने वोट्स नहीं मिले जितने 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस को मिले. लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस मेड एन अलायंस विथ सीपीआई. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने सीपीआई के साथ मिलकर के इलेक्शन फाइट किया था. देयर वाज अ अलायंस of Congress R and CPI. So Congress R alone didn't fight in the election. ये एक alliance था Congress R plus CPI का. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. So they combined won 375 seats and secured 48.4% of vote. And Indira Gandhi's Congress party won 352 seats with about 44% of popular vote on its own. एंड जो ग्रैंड अलायंस था, इट प्रूव टू बी अ ग्रैंड फेलियर, क्योंकि ग्रैंड अलायंस को कोई सक्सेस नहीं मिली. रीज़न भी है. आपसे अगर ये कोई पूछे कि ग्रैंड अलायंस को सक्सेस क्यों नहीं मिली, यू कैन ऑल से दैट इट नो हैव एनी पॉजिटिव प्रोग्राम टू ऑफर टू द पीपल ऑफ इंडिया. तो उनके पास कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं थी जिससे लोग इम्प्रेस हो पाते. तो लोगों को लगा ग्रैंड अलायंस भी ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ हाउ कांग्रेस एबल टू रिस्टोर. So this is a phase of restoration of the Congress by again gaining the victory. So कैसे किया? Indira Gandhi in many ways had reinvented the party. Now it was a new Congress that had emerged. अब इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को चेंज किया and she consolidated its position and assumed a position of unprecedented political authority. What she did? She बिकेम अ डोमिनेंट लीडर नाउ. पहले जो एक प्रेशर काम कर रहा था सिंडिकेट का, अब उन्होंने अपनी पावर्स को सबको कंसोलिडेट कर लिया. शी बिकेम एन होल सोल डिसीजन मेकर एंड दिस इज़ हाउ शी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलर अनरेस्ट एंड शी ऑल्सो एबल टू काउंटर द opposition by focusing on pro-poor programs. So class, now I hope you all have understood this thing. Thank you. Hello students. So we'll continue with our topic 1971 election. In the previous module, we had discussed about that what was the background of the 1971 election, that in under what circumstances the election took place in India, as Indira Gandhi at that time also was facing lot of problems. जैसे 67 इलेक्शन से पहले SPD अलायंस बना था, 1971 इलेक्शन से पहले Grand Alliance was formed, and not only the opposition party was starting the movements and protests, people were also quite dissatisfied with the system. Poverty, unemployment की problems already इंडिया में चली रही थी. तो इस इलेक्शन में भी इंदिरा गांधी को वो इशू फेस करना पड़ा था. एंड पीपल हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट. तो इवन लोगों का फेथ वापस से रिस्टोर करना भी इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. सो टू टैकल द अपोजिशन पार्टी, टू ऑल्सो एड्रेस द पब्लिक नीड्स, ऑल दीज इशूज वर क्वाइट चैलेंजिंग फॉर इंदिरा गांधी. बट she managed to achieve a wonderful victory in the 1971 election. There are so many reasons. It was her diplomatic skills, her foresightedness that she able to gain this victory. She adopted a very positive agenda. First of all, a very important thing is positive agenda. Positive agenda, it means कि जहाँ अपोजिशन पार्टी सिर्फ इंदिरा हटाओ के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने एक स्लोगन दिया था रिमूव इंदिरा, इंदिरा हटाओ का उस समय स्लोगन चल रहा था. लेकिन इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव स्लोगन लोगों को दिया, गरीबी हटाओ. सो शी गेव द स्लोगन ऑफ remove poverty. So this impressed people a lot.
तो उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच थी, उनके पास एक प्रोग्राम था कि वो लोगों के लिए करेंगे, जबकि अपोजिशन पार्टी जो ग्रैंड अलायंस था, इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम. दिस वॉज द रीजन दैट ग्रैंड अलायंस कुड नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल. नाउ सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर. उस समय क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बहुत एक्सट्रीम पर थे, दिस वॉज द रीजन जो मेजर वोट्स जो कैप्चर हो सकते थे, इट वॉज फ्रॉम द लोअर कास्ट ग्रुप्स एंड द पुअर सेक्शन ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज द रीज़न कि इंदिरा गांधी ने पुअर सेक्शंस पे फोकस करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इतना एम्फेसिस नहीं किया जितना पब्लिक सेक्टर को. तो उन्होंने जो 67 से उन्होंने बैकग्राउंड बना लिया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द 10 पॉइंट प्रोग्राम्स, बाय इंट्रोड्यूसिंग लेफ्ट विंग अप्रोच, एंड दिस वाज द रीज़न दैट शी इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स. लैंड लॉर्ड से लैंड सीज कर ली गई, तो इसका जो बेनिफिट मिला वो पुअर सेक्शन को मिला. तो पुअर सेक्शन वॉज इन दैट इम्प्रेशन दैट इंदिरा गांधी इज डूइंग समथिंग फॉर देम, इट्स कंसर्न फॉर देम. तो दिस वॉज द रीज़न कि पब्लिक सेक्टर को, स्टेट के रोल को इंक्रीज करने से इंदिरा गांधी को लोगों का फेथ रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्प मिली. नाउ नेक्स्ट वॉज imposition of ceiling on rural land holdings. So by imposing ceiling on the rural land holdings from the landlords, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम रूरल क्लास को थी, क्योंकि they were in the under the clutches of the landlords. So उन क्लचेस से उनको रिमूव करने में इंदिरा गांधी ने एक मेजर रोल प्ले किया बाय इंट्रोड्यूसिंग लैंड रिफॉर्म्स, जिससे जो स्मॉल पीजेंट्स थे, टैलेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम कर रहे थे, तो नाउ दे एबल टू गेट फ्री. So this was a great relief for those peasants. This is the reason they all supported Indira Gandhi so much. The removal of disparities in income and opportunities. In the previous class, I had told you that she introduced the public distribution of food grains. Food grains का distribution किया गया, प्लस हाउसिंग फैसिलिटीज़ पुअर सेक्शंस को प्रोवाइड की गई. तो इंदिरा गांधी ने काफ़ी वर्कआउट किया पुअर सेक्शंस के लिए. तो दिस वाज द रीज़न कि जो डिस्पैरिटीज़ चल रही थी अपॉर्चुनिटीज़ की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई. पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक वो डिस्पैरिटीज़ कम हो गई. नाउ नेक्स्ट इज द अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स. अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स मीन्स प्रीवी पर्स वर द प्रिविलेजेस गिवन टू द प्रिंसली किंग्स ऑफ इंडिया. जो प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी जो महाराजास थे, उनको ये प्रीवी पर्सेस प्रोवाइड किए थे सो दैट कि दे एबल टू मर्ज विद द इंडियन टेरिटरी. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उनके लिए प्रीवी पर्सेस स्टार्ट किए गए थे. उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था ताकि वो अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन कर सकें, और ये तब दिया गया जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और वो इंडियन टेरिटरीज में आ गए. इंदिरा गांधी ने वो सभी प्रीवी पर्स हटा दिए. तो उस वजह से भी पुअर सेक्शन बड़ा इम्प्रेस हुआ. पुअर सेक्शंस को लगा कि बहुत रिच वंस को ही फेवर नहीं मिल रहा है. तो ये स्टेप भी जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा. तो इस स्टेप ने ये शो किया कि इंदिरा गांधी इज कंसर्न फॉर द पुअर सेक्शन एंड नॉट फॉर द रिच वंस. देन नेक्स्ट वॉज द सपोर्ट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड लाइक दलित, आदिवासीज, लैंडलेस, लेबरर्स, वुमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ. इन सब के लिए इंदिरा गांधी के पास एक प्रोग्राम था. उन्होंने इन सब के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे. तो ये जो सेक्शंस थे जो अब पहले बिल्कुल एलिनिएटेड थे सिस्टम में, जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, अब उनको भी इंदिरा गांधी ने कुछ प्रायोरिटीज़ प्रोवाइड करी. तो इंदिरा गांधी का जो फोकस था दलित, आदिवासीज, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, वुमेन, तो उनको जब उन्होंने इतना ज़्यादा उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव हो गए, काफ़ी इंदिरा गांधी से इन्फ्लुएंस हुए. नेक्स्ट इज दैट शी इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर. Indira Gandhi emerged as a nationalist leader because she played a very important role in the 1971 war. Although ये बात का सीन है, लेकिन पहले से उन्होंने अपना जो नेशनल जो इंक्लिनेशन है वो उन्होंने शो कर दिया था by her bold strategies, by her independent decision making. So she impressed people by her working right from 1967. So 1967 से जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, so in this way she emerged as a strong nationalist leader. So now through all this thing, the domination of the Congress was restored, and finally Congress able to again regain its strength
and these are all the reasons. This is a very important question students, so pay attention on that. इसको आप अच्छे से NCERT बुक में पढ़ना. Hello students, so in this class we'll discuss about the nature of restored Congress. Previous class में हमने पढ़ा था that 1971 election में Congress able to win a very good victory with a good majority. So इसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे कि इंदिरा गांधी ने कैसे बोल्ड डिसीजंस लेकर के कैसे पुअर सेक्शंस को इम्प्रेस करके कांग्रेस को फिर से रिस्टोर किया था, कांग्रेस की जो पावर्स है उनको फिर से रिस्टोर किया था. एंड इंदिरा गांधी आफ्टर द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी शी ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस आर, जो कांग्रेस रिक्वेस्ट जो पार्टी थी उसको उन्होंने फिर से स्ट्रेंथन किया और उसके पूरा जो नेचर था उस पार्टी को बिल्कुल चेंज कर दिया. नेहरू टाइम्स में जो कांग्रेस थी और अब इंदिरा गांधी टाइम्स में जो कांग्रेस आर जो बनी उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंसेस थे. तो द होल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज चेंज्ड आफ्टर द 1971 इलेक्शन. सो दैट वी विल डिस्कस दैट नेहरू टाइम्स में और इंदिरा गांधी के टाइम्स में ये डिफरेंस भी आपको इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है. इट कुड बी आस्क्ड टू यू इन एग्जाम दैट व्हाट वाज द डिफरेंस इन द कांग्रेस सिस्टम ड्यूरिंग नेहरू टाइम्स एंड इंदिरा टाइम्स. तो ये डिफरेंस भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलेगा. तो नंबर वन पॉइंट इज रिलाइड इंटायरली ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि नेहरू टाइम्स में तो एकोमोडेशन था. इवन अपोजिशन पार्टी तक के लोगों को नेहरू ने एकोमोडेशन दिया. उनसे भी कंसल्टेशन लेने में नेहरू ने कहीं कोई उनको हेजिटेशन फील नहीं हुई. तो उस समय फैक्शंस का भी प्रॉपर एकोमोडेशन होता था, हर एक सेक्शन वहाँ पे एकोमोडेट होता था. बट इन द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी there was only the popularity of supreme leader. Indira Gandhi was quite dominant. She used to take independent decisions and she was not in favor of taking advices and opinions from all sections of the political party. So she used to take dominant decisions. She used to take independent decisions. Then next point was weak organizational structure. So अब नेहरू टाइम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसमें सभी को प्रॉपर बैलेंस किया गया था, लेकिन अब वो बैलेंसिंग जो फैक्टर था वो चला गया. अब फेवरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी वीक हुआ. कुछ पर्टिकुलर लोग ही थे जो दोज हुआ गिविंग द सपोर्ट, अदर्स दे वर लाइक some were opposing, some later on left the party. तो उसके बाद कांग्रेस में बहुत सारे डिविजन्स हुए. तो नॉट ओनली कि 69 में जो डिवीजन हुआ कांग्रेस हो कांग्रेस आर, बल्कि उसके बाद आगे और डिवीजन पे डिवीजन होते गए. तो दिस शोज कि बिकॉज ऑफ द वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट कांग्रेस नाउ हैज़ लेस फैक्शंस मीन्स लैक ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. अब फैक्शंस नहीं होंगे, पहले तो इतने ओपिनियन और इंटरेस्ट थे क्योंकि सबको बोलने का मौका मिलता था, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता था और नेहरू सबके साथ एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते थे. लेकिन अब क्या हुआ, दोज हु वर ऑफ अपोजिंग नेचर दे वर सिंपली एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. तो जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बोलने की सोचते भी थे तो उनको सिंपली एक्सपेल कर दिया जाता था. तो इंदिरा गांधी वॉज वेरी बोल्ड, वेरी डोमिनेटिंग, सो शी नेवर यूज टू लेट एनीबॉडी टू डोमिनेट द सिस्टम. तो दिस वॉज द रीज़न कि कोई फैक्शन बना ही नहीं और कोई फिर इस वजह से देयर वॉज लैक ऑफ ओपिनियन इंटरेस्ट. जो भी इंदिरा गांधी के अपोज में काम करते दे सिंपली हैव टू लीव द पार्टी. So this was the reason that party didn't have the capacity to absorb all tension and conflicts. So Nehru times और इंदिरा गांधी times में ये major difference है. The nature was that in Indira Gandhi times there was no accommodation of factions. So this was the reason that कि जो democratic expression जो democracy में माना जाता है कि people can express anything, वो अब थोड़ा सा shrink हो गया. तो अब सिंगल डोमिनेंस आ चुका था और बाकी जो दूसरी अप्रोचेस थी दे डिडंट गेट एनी स्पेस इन द सिस्टम. So this is how the new Congress have now become in the 1971 election. So ये चेंज है, मेजर चेंज है
in the Nehru times and Indira Gandhi times that you need to take care.